हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनालिस्ट अड्डा। तो ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो स्ट्रिंग बफर से रिलेटेड चल रही हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस क्लास। सो टुडे इज़ दी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इज़ मेथड चेनिंग। सो आज का जो टॉपिक है वो उससे रिलेटेड है कि मेथड चेनिंग क्या है, व्हाट इज़ मेथड चेनिंग इन जावा, एंड can we chain multiple append call together in a string buffer or not? Okay, so yes, मेथड चेनिंग क्या है मैं पहले आपको ये बता देती हूँ। मेथड चेनिंग इज बेसिकली इज द प्रोग्रामिंग टेक्निक्स वेयर मल्टीपल मेथड्स आर called in a single statement. But here is the concept of single statement. We can call only the which return types is the same type. Okay, if return types is the different type, then we cannot call together, then we cannot chain together. So one after another, basically we can say the after applying a method and the result we call another method, and again after applying a method and the result we call another method, and the so on. So which forms a method chaining. So it is possible in the string buffer and the string builder. In string it is not possible because the string is immutable, you know very well. In the previous classes we have already discussed these things. Okay, so this is a method chaining, and the another question is can we chain multiple append call together in a string buffer? Yes, it is possible because we can chain multiple append calls because each call to append returns the same string buffer object, which allow us to keep calling methods on it, right? And multiple methods, we have multiple methods in string buffer, right? So we can use in a chain. So suppose we have the multiple methods insert, append, which returns the same types, right? So if whatever returns the same types, we can use these methods, replace, delete, reverse. These method returns the same return type. Okay, but suppose we have discussed a lot of methods, right? Suppose the length we cannot use in the chaining, right? Why? Because it returns int, right? Capacity returns int, set char add returns the void, answer capacity returns void. So these methods we cannot use inside the chain. And the one of the most important method is the toString. We can also use the toString method, but in the last, not in between, right? Because it returns the string method. So this is the theory, but I will show you some examples how we can chain all of the methods, all of the first of all मैं आपको append का बताऊंगी, right? appends कैसे काम करता है, उसके बाद में आपका next अदर्स मेथड्स है उनको भी मैं ऐड करके बताऊंगी, उनका भी चेन कैसे हम क्रिएट करते हैं उनको भी मैं बताऊंगी, राइट? सो बेसिकली इसका सिंपल मेथड चेनिंग है। ऑब्जेक्ट है, जो भी मेथड्स ऑब्जेक्ट है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 डॉट लगा के हम उसको ऐड कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं सॉरी एक क्रिएट कर लेते हैं। राइट, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब हमको क्या करना है, अपेंड करना है, राइट? मेथड का ऑब्जेक्ट क्या है, एस बी है, तो हम करेंगे एस बी डॉट अपेंड, अपेंड, राइट? अब देखो सेम सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बूलियन है तो बूलियन करेंगे, कैर करेंगे, तो हमें अपेंड करने के लिए क्या चाहिए, सेम, जो भी रिटर्न टाइप उसका सेम होगा। एनालिस्ट का रिटर्न सेम ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न कर रहा है, मीन्स दिस रिटर्न कर रहा है,
उसको ही अपेंड कर सकते हैं हम। तो अपेंड किया हमने, अपेंड में ये सारे हम सारे ही रिटर्न्स करेंगे। तो अपेंड स्ट्रिंग रिटर्न के लिए हमने अपेंड और हमने इसको ऐड किया। तो पहला तो हमारा सेम एस बी था, हमने अपेंड किया अड्डा। अब हमें कुछ और मेथड रिटर्न्स करना है। अपेंड सेम सेम फिर हमने अपेंड किया। तो ऐसे जो आप देख रहे हो मैं अपेंड कर रही हूँ। सॉरी, ये बुलियन आ गया। राइट। तो ये मैंने इतने सारे मेथड्स हैं, एज अ अपेंड के थ्रू मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया एज अ चेन फॉर्म। जो हम कह रहे हैं एज अ चेन क्रिएट हो गया है, राइट। तो अगर अगर जब इनको हमें देखना है, पहले मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देती हूँ जिससे आपको एक फॉर्म में आपको शो हो। अभी आप इसको देख सकते हैं। रुको, अभी मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया है, प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं। क्या है, एस बी, राइट। केवल एक ही ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर ही मैंने एज अ अपेंड के थ्रू क्या फॉर्म क्रिएट किया, एज अ चेनिंग फॉर्म क्रिएट किया। और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। देख, आपको सारा एक ही फॉर्म है, एक ही ऑब्जेक्ट है एस बी, उसी में मैंने एज अ चेन के फॉर्म में अपेंड अपेंड यूज करके क्या किया, ये सारे मेथड्स क्रिएट कर दिए और आपको एक फॉर्म में क्रिएट हो गया। एनालिसिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप आपको ये अपेंड का जो चेनिंग फॉर्म है वो आपको समझ आया होगा। अगर अब जैसे आपका कहना होगा, आपके माइंड में चल रहा होगा, क्या हम केवल अपेंड ही कर सकते हैं? नहीं, जैसे मैंने बताया, एक सेम रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट जो होगा उसको हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अपेंड ही यूज कर सकते हैं। अपेंड के साथ हम, मैंने और मेथड्स जैसे बताया आपको कि रिप्लेस यूज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कैर एट यूज कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपेंड के। तो सॉरी, मैं आपको एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ, राइट। एक और दूसरा मैं स्ट्रिंग बफर क्रिएट कर रही हूँ, sp1। राइट। अब sp1 में क्या है, मुझे अपेंड करना है। क्या पहले, सबसे पहले मैंने अपेंड कर सकती, ओके, मैं सारे आपको मेथड्स है वो आपको बताती हूँ। एस वी डॉट अपेंड किया। सॉरी, अब मैंने ये तो अपेंड किया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मुझे डिलीट करना है, ठीक है, और डिलीट किया, मैं डिलीट कैर ऐड करती हूँ, ओके। फोर्थ नंबर पे मैंने डिलीट किया, फोर्थ कैरेक्टर। देन मैं इसको कर रही हूँ रिवर्स। सेम डेटा टाइप होना चाहिए, राइट। रिप्लेस किया, रिप्लेस कर सकते हैं, बट रिप्लेस रिवर्स कर देते हैं, राइट। और मैंने इसको रिवर्स कर दिया, राइट। फिर अब जैसे एक और मैंने आपको बताया था, सेम रिटर्न टाइप, टू स्ट्रिंग का भी सेम रिटर्न टाइप से ऐसा स्ट्रिंग है। ये सारे मेथड्स हमको सेम रिटर्न टाइप्स दे रहे हैं स्ट्रिंग से। तो टू स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, बट वैसे मैंने बताया टू स्ट्रिंग इन बिटवीन नहीं यूज करेंगे। हम टू स्ट्रिंग को कहाँ यूज कर सकते हैं, लास्ट में यूज कर सकते हैं, राइट।
मैंने इसको एंड कर दिया। मैं इसको आपको रन करके दिखा, ओ सॉरी, मैंने इसमें प्रिंट स्टेटमेंट में ही दिया है SV1। ओके, आपको थोड़ा क्लियर हुआ? यहाँ पे मैं स्पेस दे दूँगी तो और भी क्लियर हो जाएगा। क्या रिमूव किया है, राइट। एनालिस्ट करके है, और जो भी हुआ है अड्डा में हुआ है, डिलीट कैर एट हुआ है, एनालिस्ट SP.append अड्डा किया है, फिर इसको टू स्ट्रिंग किया है। मैं कुछ और एक और यहाँ पे 4th नंबर का कैरेक्टर के 1 2 3 4, ओके, ये 1 नहीं हुआ है इसलिए आपको आउटपुट नहीं दिख रहा है, राइट। अभी आपको दिखेगा, राइट, क्योंकि रिवर्स भी नहीं शो हो रहा था, डिलीट भी नहीं शो हो रहा था, राइट। आपको एनालिस्ट में पहले परफॉर्म किया, SV अड्डा ऐड किया, एनालिस्ट में अड्डा ऐड किया, आपको यहाँ पे शो होगा कि एनालिस्ट और अड्डा आपको अपोजिट दिख रहे हैं, यहाँ से ANALYST, राइट। ए गायब है यहाँ पे से, राइट, जो क्योंकि 4th जो कैरेक्टर है वो हमने डिलीट ऐड किया है, फिर अड्डा अड्डा भी ऐड हुआ है, राइट। फिर क्या हुआ है, 4th कैरेक्टर डिलीट हुआ है, यहाँ से 4th कैरेक्टर डिलीट हुआ है, फिर हमने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, जो एनालिस्ट पूरा जो था रिवर्स हो गया। अड्डा आपको रिवर्स क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ए आगे भी है पीछे भी है, डी है, इसलिए आपको ये रिवर्स होके नहीं दिख रहा है, बट रिवर्स हो चुका है, ठीक है। फिर एज अ टू स्ट्रिंग की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर टू स्ट्रिंग भी नहीं की तभी हमको यही आउटपुट आएगा, क्योंकि टू स्ट्रिंग का मीन्स यही है कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, राइट। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि ऐसा नहीं है कि केवल अपेंड को ही हम परफॉर्म कर सकते हैं मेथड चेनिंग में, हम मल्टीपल मेथड्स जो सेम डेटा टाइप रिटर्न्स करते हैं हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि क्या इसका बेनिफिट है, क्या मतलब एडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेन जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज है, वी कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन इन सिंगल लाइन, राइट। आपको ऐसे दिख रहा है कि हम एक ही लाइन में मल्टीपल ऑपरेशंस को क्या कर सकते हैं, हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वी डू नॉट राइट ईच स्टेप सेपरेटली। ऐसा नहीं है कि हमने एक अपेंड को करने के लिए फिर हमने पूरा मेथड क्रिएट किया, फिर उसके बाद फिर अदर मेथड बनाया, फिर हमने फिर में उसमें अपेंड किया। तो हम मल्टीपल्स मेथड्स को क्या कर रहे हैं, एक सिंगल मल्टीपल ऑपरेशंस को सिंगल लाइन में परफॉर्म कर सकते हैं। हमको बार बार स्टेप्स को लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इंटरमीडिएट जो वेरिएबल्स है बार बार यूज करने होते हैं वो उनको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि मोस्टली हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेमवर्क्स में, लाइक हाइबरनेट है, स्ट्रीम्स में हम यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर में यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है इसके मेथड चेनिंग के एडवांटेज हैं। अब अगर बात की जाए कि क्या डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके, मेन डिसएडवांटेज ये है, सपोज हमने इतना सारा मेथड चेनिंग तो कर दिया, राइट। अगर कोई इशू आया मिड में तो इसको डिबग करना हार्डर होगा, राइट। तो हार्डर टू डिबग इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन मिड। स्टार्टिंग का हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लास्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मिड इन बिटवीन मिड में बहुत सारे हमने ऑपरेशंस लगा रखे हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत इशू आएगा अगर कोई इशू आया तो। ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। और जैसे मैंने बताया कि ईच जो चेन है मेथड शुड रिटर्न्स दिस, अदरवाइज चेनिंग ब्रेक्स। अगर हमने कोई ऐसा ऑपरेशंस लगा दिया इन बिटवीन जो वो दिस रिटर्न्स नहीं करता है, दिस रिटर्न्स इट मीन्स सेम ऑफ डेटा टाइप्स रिटर्न्स नहीं कर रहा है, तो मेथड चेनिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर लेंथ लगा दिया बीच में तो वहाँ पे ही मेथड चेनिंग ब्रेक हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं है, स्ट्रिंग बफर में और स्ट्रिंग बिल्डर में पॉसिबल है मेथड चेनिंग को, राइट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास एंजॉय किया होगा आज का। थैंक यू, बाय बाय।